fourth webathon, and this is a very super concept which Prem sir is here, with Pado with Prem. So I'm damn excited, for attending this wonderful webathon. So I request everybody to on your videos, because this is going to be a fantastic, learning zone, learning area where we are really attending with from Prem sir directly. So in another few minutes, we are going to start the session. Meanwhile, I request everybody, if your partners and everybody, you can invite them to join this call, because this is one webathon where even anybody can attend this, and because this is a complete learning platform where we can learn directly from Prem sir. Yes. So before starting this session, I want everybody, let us start this wonderful webathon with a silent prayer. I request everybody, let's have a silent prayer. Yes, thank you very much. So first of all, let me introduce myself. My name is Arjun. I'm joining the call from Hyderabad, and today I'm the host for this webathon. I'm feeling blessed to be a part of this season 4 webathon. Already we have successfully completed 3 webathons. People, I need to thank this platform Zoom, because this is where we are able to meet our mentor Prem Kumar Parthasarathi sir. Every Thursday. Guruvar is all about, it has become, Thursday right now is all about webathon for us. It is our subconscious mind has accepted that every Thursday morning we are in front of our laptops to learn from Prem sir. When I heard this concept of season 4, I was really excited, because we can learn many things from books. Yes, books should be our best friends, and we will be learning lot of things from books. So instead of reading, I feel like it is a mentor is equal to 100 libraries. It's not just 100 books, it is equal to 100 libraries. I remember the day when Prem sir met me, he gave me this book. There was a he used to for every birthday he used to give a book as a gift. So I don't know, I was not understanding the value that time, but later on I could understand the real value. Books can change us forever, and a mentor can change us forever. Okay, so such a wonderful opportunity right now. Not only us, everybody are able to get this. Every Thursday, Prem sir is coming, and with him, he is bringing a book and he is going to educate us. We are going to read with him. Pado with Prem. I'm just excited, so excited, to attend this kind of program. How many of you are really excited? Yes, I can see different age group of people joining from different parts of the country. This is a really fantastic opportunity for everybody of us to transform ourselves, for better, and especially from Prem sir, when we are understanding this, it's a big blessing. So this is a new beginning for us. So every Thursday morning, 7 o'clock, we'll be here. So without any delay, if Prem sir is here, I'm very much excited to invite him. So let me invite this personality who changed my life and many people's life across the country, and he's still on a mission to educate, to give value, to add value to their life, and to make them better. So let me invite, without any delay, let me invite Prem Kumar sir onto the spotlight. Good morning, Arjun. Can you hear my voice? Yes, sir. Very good morning, sir. Good morning. And my video is clear? Very clear, sir. And my backdrop is clear? Perfect, sir. Good morning. Namaskar, dosto. I can see the gallery. I've seen people. सभी लोगों ने अपना जो कैमरा जो है उन्होंने ऑन रखा है. Very good. Give me a thumbs up. Good morning. Shake yourself up, because this is a new day, another beautiful day. And आप लोग अलग-अलग cities से, अलग-अलग states से connected हैं आज all over India से. Very good. And more people are keep on joining us. And some people are drive करते हुए आप सुन रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. No problem. आपको ध्यान अपनी ड्राइविंग पे रखना चाहिए. सिराजुल हक is driving. अच्छा.
उनके स्टेयरिंग के पास रख दिया उन्होंने कैमरा, तो वहां से अच्छा है व्यू मुझे देखने के लिए। अच्छा, तो वेलकम टू दिस वेबथॉन सीजन 4। इट्स अ फैंटास्टिक सीजन। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं, साथ में मिलकर, मे बी अबाउट हाफ एन आवर और 40 मिनट्स एवरी थर्सडे, maybe for, I don't know for how many weeks, but I think at least for the next 90 days we are going to be like this. We have a fantastic plan to take all our rubies to Goa in the month of June. So I believe we are in March now, so April, May, June, so up to that we will continue this. So Webathon season 4 के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है, and this is a beautiful concept called पढ़ो with प्रेम। and ये मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे लगा कि कभी कभी ना फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेम्बर मेरा पहला इंट्रोडक्शन किताबों के साथ हुआ था जब व्हेन आई वाज इन माय नर्सरी। आपको भी याद होगा, आपके बचपन में थोड़ा सा मेमोरी जॉगर के साथ अगर आप, इफ यू गो डाउन योर मेमोरी लेन, आपकी यादों के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको याद होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको किताबें दिया। शायद आपके राइम्स का हो सकता है, या 4 लाइन बुक हो सकता है जिसके अंदर हमें कुछ लिखना पड़ता है, कलरिंग करना पड़ता है, सब कुछ। सो बुक्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ मी एंड पार्ट ऑफ ईच वन ऑफ अस। और हम सब लोग अपने पुरानी यादों को अगर हम चेक करेंगे तो वी ऑल हैव सो मच ऑफ कनेक्शन विद आवर बुक्स। और बचपन से नर्सरी यानी लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ सम और द अदर बुक। और कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरा कॉलेज या स्कूल एजुकेशन के बाद मुझे और किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किताबों से ऐसे कनेक्शन हो गया कि किताबों का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पढ़ने का मतलब एजुकेशन, इसका मतलब एग्जाम के लिए पढ़ना। तो वो हो गया। अब मैं आज आपको ये डिफरेंस बताना चाहूंगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दिस, बहुत फेमस कोट है। स्कूल में, कॉलेजेस में क्या होता है? पहले हमें पढ़ाते हैं और उसके बाद उसका परीक्षा होता है, जैसे परीक्षा ली जाती है, जैसे एग्जाम, राइट? दैट्स अबाउट स्कूल एंड एकेडमिक्स। लेकिन लाइफ के अंदर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। लाइफ के अंदर पहले आपको पढ़ाया जाता है, यू लर्न द लेसन, लाइफ टीचर्स यू अ लेसन। उसके बाद आफ्टर दैट you learn, right? For example, you have the exam, उसके बाद आपको you have the lesson taught। बट स्कूल में ऐसे नहीं होता था। पहले हमें मैथमेटिक्स या लैंग्वेजेस या कोई भी हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर हमें वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके बाद एग्जाम लिया जाता है। लेकिन लाइफ में इट इज उल्टा, मतलब इट इज पहले आपका एग्जाम रखा जाता है, इन दैट एग्जाम यू विन और यू फेल, उसके बाद आपको उसके सबक सिखाया जाता है। सो दैट्स हाउ लाइफ इज। सो बट I have continued to be a part of having books as a part of my life. अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, I believe always that books are the best friends. यहाँ तक कि last year I have studied highest books in my life because I had a lot of time. Last year मेरे पास बहुत वक्त, I think Manas is there. Good morning, Manas. Very happy to see you. Very smart. अच्छा, thank you for joining us this morning. And good morning. Good morning. How are you, Manas? I'm good, sir. Nice to see you, sir. Good morning. Fantastic, fantastic. Nice to see you also, and all the people here in the gallery. Thanks, Manas, for joining me. If I need some help, I'll take it from you because this is the first session. I'm little nervous. मैं थोड़ा nervous हूँ क्योंकि this is the पढ़ो with प्रेम, the first time we are trying something up. Life में मैंने सीखा कि try something always new. अगर गलत हो गया कुछ, ठीक है, no problem, उधर से भी सीखेंगे। अच्छा हो गया तो excitement है कि बहुत अच्छा हो गया, right? तो I believe अच्छा ही होने वाला है। But otherwise also, this is the first session. So मैंने लाइफ में हमेशा किताबों को मेरे साथ रखा। जैसे लास्ट ईयर की बात अगर मैं कहूं तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट अबाउट 196 डेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पर मुझे ना मोबाइल फोन यूज करने का मौका मिला, ना किसी से ज्यादा बात करने की मौका मिला, या लोगों के साथ कनेक्ट होने का, सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं है, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक। तो आई हैड ओनली द मिरर जिसके अंदर आई कैन सी माई फेस, and I had a book with me, lot of books, so I can read my books. So last year I have read the highest number of books I could say, right? So उसका भी collection है मेरे पास जो वहां पर मैं पढ़ रहा था, और किताबों के अंदर I have noted down so many powerful points. चलिए, this is the first week of this पढ़ो with प्रेम, and मुझे लगा we should take something very beautiful। और हम सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो उसके लिए दोस्तों I felt that we should start with a fantastic book। और मेरे पास ये बुक है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कौन सा बुक है, आपको गेस करना पड़ेगा। बट एनीवे, इट्स नॉट अ कॉन्टेस्ट और अ क्विज, बट जस्ट मेकिंग फन, राइट? सो पॉइंट इज,
I have read many authors. I've gone through many authors, national, international, different authors. लेकिन मुझे जिन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, and one of my favorite authors also, I think आप लोग भी उनको एक बहुत अच्छे author मानते हैं. He has published many best-selling New York Times best-selling author and a lot of books also. तो मुझे लगा, as champions, we all want to become successful in life. We all want to become champions in life. So one of our favorite author, which you also will love, that is Mr. Robin Sharma. तो आज हमारे बीच में आने वाले हैं रॉबिन शर्मा. उनके किताबों के जरिए, उनके लिखे हुए किताब के जरिए हमारे बीच में आने वाले हैं. दैट इज रॉबिन शर्मा. तो रॉबिन शर्मा हैज रिटन many books. One of the biggest success of his books, I would say, The Monk Who Sold His Ferrari, Family Wisdom, Who Will Cry When You Die, and Greatness Guide, and many other books. And recently, I think 5 a.m. Club is one more thing which is a fantastic book. और उसके साथ ही साथ I would say the recent book of Robin Sharma is our पढ़ो with प्रेम का आज का किताब हमारे बीच में है, The Everyday Hero Manifesto by Robin Sharma. आप इसका फोटो ले सकते हैं. अगर आप किताब खरीदना चाहेंगे तो आप खरीद सकते हैं. अदरवाइज नो नीड टू बाय दिस बुक. आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू नॉट टू बाय और टू बाय. इट्स अप टू यू. ये नहीं है कि जो भी बुक्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हर बुक को हम खरीदें, राइट? सो इट्स नॉट नीडेड. बट अगर आप खरीदना चाहेंगे, इफ यू गो टू अ बुक स्टोर, इफ यू लव टू हैव अ कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, सो दिस इज वन बुक विच आई वुड रिकमेंड, द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो. इसका टाइटल मुझे बहुत कैची लगा. उसका कारण क्या है? ऑफ कोर्स आई लव रॉबिन शर्मा बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक थॉट लीडर. और उन्होंने इस बुक के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे हमें बताया जिसके अंदर हम लाइफ में अगर हम हीरो बनना चाहते हैं, एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो, नॉट वंस इन अ लाइफ, एवरी डे. क्योंकि चैंपियंस का मतलब क्या होता है? दे प्रैक्टिस एवरी डे, दे डू देयर बेसिक्स एवरी डे, दे प्रैक्टिस देयर आर्ट or maybe the field whichever they belong to, they practice every day. So every day हमारे लाइफ में अगर हम हीरो बनना चाहिए तो we have to have certain things. and इस बुक के अंदर मैं आपको आज आपको लेकर जाने वाला हूँ. Don't worry, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं YouTube पर डालूंगा, तो you don't have to worry about recording this or something like that. But then ध्यान दीजिए, because if you are present here for the next 30-40 minutes, definitely you can take away a lot of things from here, right? तो इस बुक को अगर आप चेक करेंगे तो it's a very bulky book. You can see the size, okay? अब इस बुक का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मुझे रेफरल बोनस या कुछ नहीं मिलने वाला है इसके ऊपर. सो डोंट थिंक दैट आई एम मार्केटिंग दिस, बट आई एम genuinely telling this is a fantastic book. This is a book of almost about 385 pages. So it's a bulky book. You can keep it with you. कभी कभी अगर आपको नींद आ रहा है तो इसको एज ए पिल्लो ऑल्सो यू कैन यूज इट. क्योंकि क्या होता है, पिल्लो की तरह यूज करने से इसका नॉलेज डायरेक्टली हमारे दिमाग में जा सकता है. ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, बट ये नहीं होता है दोस्तों. पढ़ने से और पढ़कर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन दिस बुक बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, राइट? एंड सो लेट्स गेट इनटू दिस. एंड बहुत सारी चैप्टर्स है इसके अंदर, बट आई लव दिस बुक फॉर वन रीजन. दिस इज द लेटेस्ट बुक ऑफ रॉबिन शर्मा. और उसके साथ ही साथ दिस इज नॉट अ वेरी अ बुक जिसके अंदर एक चैप्टर 5, 10, 15 पेज का होता है. एक चैप्टर इसके अंदर 1 या 2 पेज या 3 पेजेस के अंदर खत्म होता है. तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग of this book, and almost about 101 chapters are here, and all the chapters titles are fantastic, right? Okay, कुछ chapters को मैं सिर्फ टाइटल आपको पढ़कर दिखाऊंगा so that you also get a hang of it. A manifesto for the everyday hero within you. हमारे अंदर का जो हीरो है उसको बाहर लाने का, रोज उस हीरो को जगाने का तरीका, राइट? वो फर्स्ट चैप्टर है. बीइंग फेथफुल टू योर आइडियल्स इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइटल. रॉबिन शर्मा के बारे में अगर मैं बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट हिम, ही यूजेस पावरफुल वर्ड्स. And I know a powerful feeling comes from a powerful word, and the feeling becomes thoughts, and thoughts becomes feelings. It's interconnected. Uske baad that becomes a kind of an action, behavior, character, personality. So the words, words have power. Words have power. शब्दों के अंदर वो शक्ति है. तो रॉबिन शर्मा की जो वोकैबुलरी का जो सिलेक्शन होता है ना, जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, the words, they are very, very powerful. Okay, so being faithful to your ideals is a force multiplier. रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम जिसे अपने आइडियल्स मानते हैं, हमारे गुरु या हमारे जो
क्या बोलूं रोल मॉडल जो हम मानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो इनटू क्रिकेट, विराट कोहली मे बी योर आइडियल. इफ यू वांट टू गो इनटू सिंगिंग, मे बी सोनू निगम इज योर आइडियल. तो लाइक दैट हम जिन्हें अपने हीरो मानते हैं, उनको अगर हम सिर्फ उनको देखना ही नहीं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे, उनको फेथफुल, अपना जो क्या बोलूं मैं, अपने अपने आप को बहुत ही डेडिकेटेड रखेंगे वैसे बनने के लिए, वो हमारे अंदर एक शक्ति, ऊर्जा पैदा कर सकता है. ये इसका टाइटल का मीनिंग है. देखिए टाइटल के अंदर कितनी सारी चीजें छुपी हुई है. तो देयर आर मेनी मेनी टाइटल्स, बट देन आई एम गोइंग टू टेक यू इनटू वन चैप्टर जो मुझे अच्छा लगा, मेरे साथ अभी बहुत वो कनेक्ट हुआ. तो थर्ड वन इज द फाइनल आवर्स ऑफ योर डिफीटेबल सेल्फ. इट्स ओके नॉट टू बी ओके. वाओ, वो भी टाइटल बहुत अच्छा. इट्स ओके नॉट टू बी ओके. क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हमें बचपन से ये बताया जाता है कि डोंट डू मिस्टेक, ऑलवेज यू शुड बी ओके, यू शुड बी करेक्ट, यू शुड बी परफेक्ट. लेकिन रॉबिन शर्मा इज सेइंग हियर इट्स ओके नॉट टू बी ओके. कभी कभी लाइफ में थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक, ऑफ ट्रैक भी हम चले जाते हैं, ऑफ बीट चले जाते हैं. तो इट्स ओके नॉट टू बी ओके, राइट? And the victim to hero leap. Wow, this title I really like. Chapter number 6, the victim to hero leap. यानी अपने लाइफ में हम या तो विक्टिम बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं. मैं हमेशा ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि विक्टिम माइंडसेट और लीडर माइंडसेट. विक्टिम का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ऑलमोस्ट 10-15 years ago. You all know about the बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट. उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बहुत सारे विक्टिम्स उससे निकले, मतलब जिनको जो बहुत ही उस इंसिडेंट से बहुत उनको दर्द पहुंचा गया था. सो यू कैन आइदर बी अ विक्टिम. जैसे हमारे पास्ट में हमारे साथ में बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, तो हम या तो विक्टिम बनकर अपने पास्ट में जी सकते हैं. जो हमारी दुख भरी कहानी है उसे रोज उसका एक नया वर्जन बनाकर लोगों को सुना सुनाकर और दुख हमारे जिंदगी में ला सकते हैं, या अपने पास्ट को वहीं पर छोड़कर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे जाकर हीरो बन सकते हैं. सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टाइटल नंबर, मतलब चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है द विक्टिम टू हीरो लीप. लीप का मतलब होता है जंप, बहुत बड़ा एक लीप, मतलब नॉट अ नॉर्मल जंप, इट्स मोर देन अ जंप. लीप, राइट? कूदना, एक जगह से दूसरी जगह पे कूदना, राइट? सो दैट इज अ वेरी गुड चैप्टर. एंड मैं आज आपके साथ जो चैप्टर पढ़कर शेयर करने वाला हूं, दैट इज द चैप्टर नंबर, वन सेकेंड, मैंने वो पेपर, एक बुक, उसके साथ एक मार्कर रखा था यहाँ पर. अच्छा, दैट इज चैप्टर नंबर 34. अब चैप्टर नंबर 34 का स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बताता हूं. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो 40 से कम उम्र वाले हैं, और कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो 40 से ऊपर भी हैं, और मैं बीच में खड़ा हूं. I am 40 right now. I am 40. December 26 was my birthday and I turned 40. 1981 is my year of birth. So good morning Rudresh ji, good morning. Very happy to see you. Welcome, welcome, welcome. Yes, हमारे बीच में डायमंड्स हैं, ब्लैक डायमंड्स हैं. सॉरी गाइस, आप लोगों को मैं वेलकम नहीं कर पा रहा हूं, मेरा ध्यान यहाँ पर प्रोग्राम पर चला गया. गुड मॉर्निंग रुद्रेश जी, वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. It's always a pleasure having a fantastic person like you, a hero like you with us. Thank you sir, thanks. I am just listening sir. Go ahead. Go ahead. We love you, we love you. अच्छा, तो दोस्तों मैं बता रहा था 40. अब कुछ लोग मेरे साथ हैं जो 40 के ऊपर हैं, तो उनके साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ. और कुछ लोग मेरे साथ हैं जैसे विष्णु जैसे लोग, जोएल जैसे लोग जो बहुत यंग हैं, उनके 30s में है. कृष्णा मजुमदार इन देयर 20s, राइट? सो सॉरी, विष्णु इज इन 20s, नॉट इन 30s, राइट? जोएल आल्सो इन 20s. अच्छा, तो पॉइंट क्या है, कल रात में संदीपन के साथ बात कर रहा था, मेरा एक लीडर अरुणाचल से. तो संदीपन ने कहा सर 2 दिन के बाद, यानी आज व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज यस 18, राइट? What is the date? 17. Today is 17. तो संदीपन ने कहा सर 18 मेरा बर्थडे है और आई एम टर्निंग 30. उसका 30 एज हो रहा है, तो ही इज इन हिज 30s. सो कमिंग बैक टू द रीजन ऑफ सेलेक्टिंग चैप्टर नंबर 34 इज, इस चैप्टर के अंदर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि 40 उम्र अगर आपका हो गया, एट 40 आपको कुछ चीजें जानना चाहिए. ही सेज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको पढ़कर बताऊंगा. टाइटल कहता है कि 40 things I wish I would have known at 40. वो कहते हैं कि अगर 40 उम्र में अगर ये सारी चीजें अगर मुझे पता होता तो बहुत बढ़िया होता.
तो उन्होंने लिखा, आई एम वेरी श्योर रॉबिन शर्मा इज मोर देन 40, ही शुड बी इन हिज 50s राइट नाउ, तो आई एम 40। सो मुझे लगा ये बहुत ही कनेक्टिंग पॉइंट है मेरे लिए, और उन्होंने 40 ऐसी चीजें हमारे साथ शेयर किया इस चैप्टर के अंदर जो हमें 40 के उम्र में पता चलना चाहिए। अगर आप 40 से पहले इसको सुन रहे हैं तो यू आर लकी, और 40 के बाद आप सुन रहे हैं तो भी आपको मानना पड़ेगा कि आप लकी हैं, क्योंकि कम से कम अब ये सुनने को मिला, राइट। तो चलिए मैं आपको चैप्टर नंबर 36 के अंदर लेके जा रहा हूं, सॉरी 34 के अंदर लेकर जा रहा हूं, जिसके अंदर लिखा है द टाइटल इज 40 थिंग्स आई विश आई हैड नोन एट 40। पेज नंबर 143। 143 का मतलब क्या हो गया? 143 आई लव यू, राइट, आई लव यू ऑल। अच्छा, तो 143 के अंदर मैं जा रहा हूं, पेज नंबर 143। अच्छा, आई विल रीड यू ऑल दोस 40 थिंग्स। 40 चीजें हैं, उसको हम आज सुनेंगे, एंड हो सकता है मे बी विद इन 10-20 मिनट्स ये सब खत्म हो सकता है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा, और उसके बाद उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स यहाँ पर ओपन है, आई नो वेरी वेल। सिराजुल इज सेइंग सर मेरा 46 उम्र हो गया अभी। वेरी गुड सिराजुल जी, कम से कम अब आपको मिल रहा है। गौतम चौबे से आई एम 17, वाओ, somebody is here who is 17, and Vishnu Saikia says I'm 18. Acha, Vishnu, you are 18 now. अच्छा, I don't know why you typed 18. Okay, good. Thank you for all those wishes आप लोगों ने यहाँ पर you have poured in. टाइप किया था डेट। अच्छा, ठीक है, गुड मॉर्निंग। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, somebody is saying 34, somebody is saying 25 and 41, ब्यूटीफुल। अच्छा, अपना एज टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड, फंटास्टिक दोस्तों। तो चलिए मैं आज आपको पढ़कर दिखाऊंगा यहाँ पर, और पढ़कर हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सारे 400 लोगों के ऊपर है यहाँ पर। सबसे ज्यादा यंग लर्नर की अगर बात करें तो आई एम वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस लर्नर इन दिस ग्रुप। मैं बता सकता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग। हर चीज सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। कितने लोग सीखने के मन लेकर आए आज? हाँ, मुझे पता है वेबथॉन पढ़ो विद प्रेम का मतलब हम लोग यहाँ पर कोई किताब पढ़ने वाले हैं, तो वेरी गुड। और इस वेबथॉन के अंदर कनेक्टेड रहने का एक और फायदा है, आपको नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बट बेस्ट बुक्स की जो ज्ञान है वो यहां पर प्राप्त कर सकते हैं मुफ्त में, और वो भी लोगों के साथ, लोगों के बीच, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशली वेरी वेल कनेक्टेड, हम कम्युनिटी में जीते हैं। तो लेट्स गेट इनटू चैप्टर नंबर 34, 40 थिंग्स आई विश आई हैड नोन एट 40। तो पहली चीज रॉबिन शर्मा हमें कहते हैं यहां पर, द फैमिली, फ्लावर्स and walks in the woods would bring me more happiness than cars, watches and houses ever would। मतलब यहां पर रॉबिन शर्मा का फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि जो फैमिली है, हमारे परिवार के लोग, मम्मी डैडी, भाई बहन, सन डॉटर, वाइफ हस्बैंड, तो द फैमिली एक चीज। अच्छा, और फूल, हम लोग फ्लावर्स बहुत पसंद करते हैं ना। फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी, राइट। अर्ली मॉर्निंग इफ यू गो इनटू द गार्डन टू वॉक, इफ यू सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, राइट। फूल, अपने परिवार, फूल, और पार्क में वॉक इन द वुड्स का मतलब होता है, वुड्स का मतलब इंग्लिश में इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट, वुड्स। अच्छा, अगर नेचर वॉक अगर आप ले सकते हैं इन द मॉर्निंग, राइट, वो कहते हैं कि परिवार के साथ वक्त बिताना, एक फूल खिलते हुए उसे देखना, उसका खुशबू जो है वो महसूस करना, राइट। और मॉर्निंग एक वॉक अगर आप कर सकते हैं, इट वुड ब्रिंग मी मोर हैप्पीनेस देन कार्स, वॉचेस एंड हाउस। वाओ, ब्यूटीफुल है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट फॉर रॉबिन शर्मा हमें बता रहे हैं कि अपने गाड़ी खरीदना लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बढ़ते का नाम जिंदगी है, राइट। गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम गाड़ी और घर, और या बहुत बढ़िया एक घड़ी, या सब कुछ घड़ी, मतलब एवरीथिंग कम्स विद द सेम, गाड़ी, घर या घड़ी, राइट। इन चीजों से परिवार, फूल और एक भाग के अंदर या एक मॉर्निंग वॉक अगर आपका हो सकता है, उसमें आप ज्यादा खुशी महसूस कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट आवर रॉबिन शर्मा इज टेलिंग। तो अपनी लाइफ में आप भी ना बहुत सारे ऐसे पल आप अपने लाइफ में बिताएं जहां पर आप अपना मेमोरीज बनाएं, जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, watching the nature, watching the flower bloom, seeing the honey bee going into each flower and picking up the nectar from that. ये सब कुछ हमारे लाइफ में, it should be a part of life because these are special moments which we should remember. That's the first one. Second one, let me go quickly. That getting super fit would multiply my creativity, productivity and prosperity
कंसिडरेबली, या ये बहुत बढ़िया है। पहले वो स्पिरिचुअल पर गए हैं, अब थोड़ा फिजिकल पर आ रहे हैं। रॉबिन शर्मा कह रहे हैं कि अपने बॉडी को, अपने शरीर को अगर हम फिट लेकर आए, फिट का मतलब ये नहीं कि हमें सिक्स पैक होना चाहिए, लाइक सेलिब्रिटीज के जैसे जीरो साइज अपना टमी होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। फिट का मतलब क्या होता है, अपने अपने हम लोग जहां पर रहते हैं, राइट? विष्णु साकिया इज फ्रॉम अपर असम, जोराट, कृष्णा मजुमदार इज फ्रॉम गुवाहाटी, मोहन इज फ्रॉम धारवाड़, अर्जुन इज फ्रॉम हैदराबाद, रुद्रेश जी इज फ्रॉम ऑफ कोर्स चिकमंगलुरु, सिरिल जॉन डिसोजा फ्रॉम मैंगलोर, मनीष सोनी जी एंड मिसेस मनीष सोनी जी, गुड मॉर्निंग, थोड़ा मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। तो दे आर माय गुड फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए, हम जब लोग हमें हमारा एड्रेस पूछते हैं तो हम कहते हैं कि आई स्टे इन दिस प्लेस, मैं इस जगह से हूं, इस एरिया से बिलोंग करता हूं। लेकिन सच ये है, आप इस दुनिया के अंदर जब आते हैं, इस शरीर के अंदर आते हैं, और जितने भी दिन आप इस धरती पर गुजारने वाले हैं, तो आप अपना समय इस शरीर के अंदर मतलब स्पेंड करने वाले हैं। तो आपका रियल एड्रेस इज नॉट नंबर 34 कार स्ट्रीट, सेकंड क्रॉस, 24th में, नो, दैट इज नॉट योर एड्रेस। आपका एड्रेस है 80 किलो वेट या 60 किलो वेट, और your chest and your body mass index and your body weight and your height, so that is your address। तो इसका मतलब इस व्हीकल को, ये जो व्हीकल है इस दुनिया में घूमने के लिए, जो ईश्वर ने हमें ये जो व्हीकल दे रखा है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी। इस बॉडी का ख्याल जरूर रखिएगा, right? That's what Robin Sharma is saying, that getting super fit, not only fit, super fit, अपने आप को एकदम फिट रखेंगे तो अपनी क्रियात्मक शक्ति, मतलब क्रियात्मक सोचना, राइट? क्रिएटिवली सोचना, राइट? क्योंकि क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट दैट। एक लीडर के लिए क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ प्रोडक्टिविटी, नॉट ओनली एक्टिविटी, लोग एक्टिविटी में हमेशा उलझे रहते हैं, बिजी रहते हैं, बट प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब एक्टिविटी विथ इफेक्टिविटी। एक्टिविटी जो करते हैं उसमें हमारा इफेक्ट होना चाहिए, इंपैक्ट होना चाहिए, ताकि हम रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहली चीज, क्रिएटिव विचार, हमारे मन में क्रिएटिव सोच। सेकेंड थिंग, अपने काम में कामयाब बनना, यानी जो काम हम करते हैं उसके अंदर हमें प्रोडक्टिविटी पाना। एंड थर्ड वन, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब हमारी लाइफ में सफल होना, बहुत कुछ हासिल करना, बहुत वेल्थ बिल्ड करना, क्रिएट करना। ये सब कुछ कहां से शुरू हो सकता है? अगर हम अपने शरीर को एकदम सुपर फिट रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम हमेशा अपने काम पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो काम करने के लिए जो शरीर हमें चाहिए उस पर कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, राइट? ये ज्ञान मुझे आज आपके बीच में ये कहने के लिए, मेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आया? क्योंकि कभी कभी लास्ट 3-4 मंथ से, एटलीस्ट लास्ट 5 मंथ से, फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, मैंने अपने शरीर पे, अपने फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आई एम नॉट सिटिंग इन द जिम फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट एंड आई एम नॉट स्पेंडिंग माई होल डे थिंकिंग अबाउट माई वेट, बट मैंने अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दिया, और उसका नतीजा आज आप लोगों के सामने, आई एम एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन ए न्यू वर्जन। मैं दिल्ली गया था, आई मेट लॉट ऑफ माई फैंटास्टिक टीम मेंबर्स फ्रॉम दिल्ली, आई मेट माई लवली टीम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन आसाम। तो लोग मेरे पास आकर कह रहे हैं कि प्रेम सर, आप पहले से बहुत चेंज हो गए हैं, आपके अपीयरेंस, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं? जब आप अपने बॉडी को ध्यान देते हैं, अपने बॉडी का फिटनेस पर ध्यान देंगे, आई विल टेल यू, वो हर इंसान जिससे आप मिलेंगे, जो आपको जानते हैं, एवरीबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल यू दैट यू आर लुकिंग ग्रेट, यू आर लुकिंग डिफरेंट। कितने लोग चाहते हैं कि लोग आकर आपको कहें कि यू लुक रियली डिफरेंट एंड स्टनिंग? तो दोस्तों, माय सजेशन इज पॉइंट नंबर 2, चैप्टर नंबर 34 ऑफ दिस बुक। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर हम अपने क्रिएटिविटी को, प्रोडक्टिविटी को और प्रॉस्पेरिटी को अगर हम बढ़ाना चाहेंगे, तो आपको पहले काम करना पड़ेगा आपके बॉडी पर। और जिम रॉन, द लेजेंडरी जिम रॉन, वो हमेशा कहते थे कि आप अपना पर्सनालिटी को बिल्ड करो और उसके बेसिस पर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। वो कहते थे, आपका इनकम कभी आपके पर्सनालिटी को पार नहीं कर सकता है। इसका मतलब आपकी इनकम की जो सीमा है, लिमिट जो है, वो आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड होता है। दोस्तों, तो आज से क्या हम सब लोग अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी को बेस्ट
यानी सुपर फिट रखने के लिए क्या हम लोग प्रयास करेंगे आज से? वेरी गुड, फैंटास्टिक गाइस, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू सुपर एक्टिव, क्योंकि इस देश के अंदर वी आर बिल्डिंग अ न्यू लीग ऑफ लीडरशिप, अ न्यू लीग ऑफ लीडरशिप इन द डायरेक्ट सेलिंग अरेना। याद रखिए इस बात को, क्योंकि एक साल के बाद बाय द नेक्स्ट ईयर 2023 यू आर गोइंग टू सी अ न्यू सेट ऑफ लीडर्स in our team, because we are super excited about our future, about the future of this industry, and of course the future of this fantastic company called Indus Viva, क्योंकि next year is the 10th year of this company। मेरा 10 साल इस कंपनी के अंदर next year होने जा रहा है, तो I am also super excited। The 10th year special, we have to create a new league of leadership, and that begins, my dear friends, with our फिजिकल फिटनेस। तो आज ही इस चीज को आप ध्यान में रखिए, एंड आज से अपने फिटनेस के लिए थोड़ा सा वक्त अगर आप स्पेंड कर सकते हैं, सो आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट यू। और दोस्तों, जब आप अपने बॉडी का ख्याल रख सकते हैं तो डेफिनेटली अपने बिजनेस का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर आप अपने बॉडी के ख्याल रख सकते हैं तो अपने फैमिली के ख्याल रख सकते हैं, और उससे इंपॉर्टेंट अपनी टीम का भी आप ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका फैमिली आपके परिवार से अलग नहीं है। क्योंकि ज्यादा वक्त आप अपने फैमिली के साथ बिताते हैं, वैसे ही इस बिजनेस के अंदर अपने टॉप 10 लोग जो होते हैं, अपने कोर टीम जो होता है, उसके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो योर टीम इज योर एक्सटेंडेड फैमिली। सो मेक श्योर अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए अपने आप को एकदम फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स गो इनटू द थर्ड पॉइंट। अगर मजा आ रहा है तो थोड़ा सा चैट में आकर टाइप कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, बिकॉज आई एम अ गाय हु ऑलवेज बिलीव कि चैंपियन के लिए फीडबैक ब्रेकफास्ट होता है। तो प्लीज अगर मजा आ रहा है तो अच्छा, संदीपन थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर, थैंक यू फॉर दैट। मजा आ रहा है तो प्लीज चैट में टाइप कीजिए। अच्छा चलिए लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है दैट योर चॉइस ऑफ रिलेशनशिप पार्टनर is one of the main sources of your success or failure, joy or misery, tranquility or worry। अच्छा, सो ये कहते हैं यहां पर थोड़ा सा अभी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अपने लाइफ में रिलेशनशिप पार्टनर, द चॉइस ऑफ रिलेशनशिप पार्टनर इज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ योर सक्सेस। जैसे हम लोग हिंदी में हमेशा कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, राइट? तो हमारे लाइफ में ना आवर लाइफ पार्टनर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर जर्नी, इस सफर में, राइट? हमारे हम सफर, हमारे जो साथी होता है, स्पेशली जीवन साथी की अगर हम बात करें LIC का लैंग्वेज में, तो जीवन साथी, राइट? तो योर को एप्लीकेंट और योर लाइफ पार्टनर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो आप भर प्रभावित हो सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जीत के लिए या हार के लिए, राइट? फॉर सक्सेस और फेलियर, जॉय के लिए, खुशी के लिए, गम के लिए, ट्रैंक्विलिटी और वरी, मतलब अगर आप एकदम एक्साइटमेंट के साथ अगर जिंदगी जी रहे हैं या एकदम दुखित होकर आप अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, तो जो भी हो सकता है, इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा आपके लाइफ पार्टनर का। तो ऑलवेज बॉयज, माय डियर यंग बॉयज हियर जिनका शादी अभी तक नहीं हुआ है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। यू मैरी द ब्यूटी बट यू लीव विद द कैरेक्टर। तो ब्यूटी पे ध्यान देना लेकिन कैरेक्टर को भूलना मत। एंड ऑल द यंग गर्ल्स हु आर गोइंग टू गेट मैरिड, हमेशा ऐसा एक पार्टनर चुने जो आपके लाइफ में आपके लिए बहुत ही सुटेबल हो, राइट? एंड ऑल दोज आर मैरिड, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, शादी ऑलरेडी हो चुका। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, Manas is laughing. हाँ, I'm very lucky, sir. Yes, Manas, I know you are enjoying your choice. अच्छा, पॉइंट ये है, those who are married, मैंने अपने लाइफ में देखा कि देखिए, you cannot go back and remarry. आप ये नहीं बोल सकते हाँ प्रेम सर ने बोल दिया, रॉबिन शर्मा ने बोल दिया, लाइफ पार्टनर, अच्छा अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज कर सकते हैं आप, आपके पार्टनर जो है उनको वेबतौर में लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब है आप अपने पार्टनर को भी उस माहौल में लेकर आओ, अपने पार्टनर को अपने जर्नी में साथ रखो, और उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट अगर एक जैसे हो गया तो लाइफ हो गया जिंगालाला। इसका मतलब है योर पार्टनर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे
हस्बैंड वाइफ मुश्किल से आजकल एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं, वो उनके स्मार्टफोन में देखते रहते हैं और इनके स्मार्टफोन में ये रहते हैं, बच्चों को हाथ में एक स्मार्टफोन या टैब दे देते हैं, तो सब लोग उसमें बिजी हैं। तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग। अब इंडस वीवा में अपने बिजनेस के अंदर अपने को एप्लीकेंट को इन्वॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, जो मैरिड है उनके लिए मैं ये सलाह दे रहा हूं, सबसे बड़ा बेनिफिट है, तो कम से कम इंडस वीवा के बहाने आप अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। व्हेन आई मेट द लेजेंडरी लीडर्स ऑफ आवर कंपनी, मिसेस अर्चना रेड्डी एंड मिस्टर संदीप रेड्डी फ्रॉम तेलंगाना, माय फैंटास्टिक फ्रेंड्स, तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि सर, हम शादी से मतलब बिजनेस में आने से पहले शादी तो हो चुका था, लेकिन वी कुड नॉट स्पेंड टाइम विद ईच अदर। लेकिन आजकल कहां पर मतलब कहीं पर जाना है तो साथ में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाना है तो साथ में जाते हैं, और हमेशा घर पे भी हम लोग बिजनेस के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। इसी बहाने हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत बहुत टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाट संदीप रेड्डी एंड मिसेस संदीप रेड्डी, मिसेस अर्चना संदीप रेड्डी ने कहा। इवन आई मेट पीपल लाइक कृति मैम, मिसेस कृति एंड मिस्टर अमरजीत फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने भी यही कहा। तो दिस इज अ फैंटास्टिक वे ऑफ स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। चलिए अब मैं फोर्थ पॉइंट पर लेकर जाना चाहूंगा। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके सक्सेस में बहुत बड़े एक कंट्रीब्यूटर हैं। व्हेन आई मेट मिस्टर अर्जुन, आवर ब्यूटीफुल होस्ट फॉर द डे, ही सेज माय स्ट्रेंथ इज माय वाइफ सर, बिकॉज ही सेज हिज वाइफ इज, जैसे यू नो अर्जुन विल टेल यू इफ यू मीट हिम पर्सनली, वो कहता है कि सर आपको लगता है मैं बहुत एग्रेसिव हूं, इतना एक्साइटेड हूं, माय वाइफ इज 10 times मोर aggressive and more determined to see me as a black diamond and a crown black diamond ambassador in this company. So it's a fantastic feeling. Wife is become the strength of a husband. Husband is becoming a support of a wife. Behind every successful man, there is a woman. But at the same time, behind every successful woman, there can be a man also. So definitely, let's make this point very clear. Those who are married, प्लीज मेक श्योर आप अपने को एप्लीकेंट को इस बिजनेस के अंदर लेकर आए, और इसी बहाने उनके साथ थोड़ा सा और भी अपनी लाइफ में रोमांस एंड टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ वापस आप लेकर आए, राइट? सो लेट्स गो टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज द फोर्थ पॉइंट इन दिस चैप्टर, that I would do my finest work when I would be working in hotel rooms and flying on airplanes rather than when chained to an office desk. इसका मतलब है कि हमें एक जॉब या एक डेस्क पर बैठकर सुबह से शाम तक उसी फाइल को घुमा घुमा कर, मतलब फाइल स्टडी करने का जैसा एक मोनोटोनस जॉब में कभी नहीं रहना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर मैं अपने जॉब को ऐसे सिलेक्ट करूं, अपने प्रोफेशन को ऐसे सिलेक्ट करूं जिसके अंदर रोज मुझे डायनामिक होना पड़ता है। अब देखिए, वन ऑफ द बेस्ट रीजन मैंने इंडस वीवा को सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग को सिलेक्ट किया, क्योंकि रोज मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूं। ऐसा नहीं है कि रोज मेरे सामने वो सेम इंसान आकर बैठ गया जिसका चेहरा मुझे 365 डेज देखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है। मैं कभी विष्णु के साथ बात करता हूं, कभी रुद्रेश जी के साथ बात करता हूं, कभी मनीष सोनी जी के साथ बात करता हूं, कभी अर्जुन जी के साथ बात करता हूं, विशाल जी के साथ, हरिप्रसाद जी के साथ, मानस के साथ। तो एवरी मिनट फॉर मी इज सो एक्साइटिंग, क्योंकि मैं हर वक्त अलग अलग लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूं। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग जो हमारे नौकरी या प्रोफेशन में होना चाहिए, डायनामिज्म। सो आई रियली लव दिस फोर्थ पॉइंट। वो कहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी हम अगर बाहर लाना चाहेंगे तो हमें ऐसे प्रोफेशन में रहना चाहिए जहां पर हम ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। अरे, डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा ट्रैवलिंग कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है, राइट? एंड दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोफेशन। यू आस्क मिस्टर रुद्रेश, ही विल टेल यू, वो पिछले 8 साल से 9 साल से वो काम नहीं कर रहे हैं, वो छुट्टी पर हैं। क्या छुट्टी? रोज अलग अलग जगह पे जाओ, अलग अलग लोगों के साथ बात करो, अलग अलग खाना जो पसंद का है वो खाओ, और लोगों के साथ अपने मन पसंद वाली बात करो। जैसे मैं आपको सच बता रहा हूं, आज के सेशन के लिए मैंने सिर्फ ये किताब लेकर रखा था। हाँ, इस किताब को मैंने पहले पढ़ा भी था, लेकिन मॉर्निंग वेबाथॉन है, इसमें कुछ प्रिपेयर करना ऐसे मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं अपनी मन की बात कर रहा हूं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो मैं भी यहां पर अपनी मन की बात कर रहा हूं। तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना, अपने आप को टेंशन में लाना कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई हार्ट। मैं सीधा मेरे दिल से डायरेक्टली आपके दिल तक मैं अपनी फीलिंग्स या अपनी बातों को मैं पहुंचा पा रहा हूं।
So दोस्तों, this is the fourth point what Robin Sharma is saying, that the finest work you would be doing when you're working in a hotel room or when you're flying on airplanes. So ऐसा काम आपका होना चाहिए. अपने आप को हमेशा ऐसी जगह पे मत डालो जहां पर अपनी क्रिएटिविटी को हमें मारना पड़े. So last point, that good friendships are priceless treasure. And that old friends are the most precious ones. ये दोस्ती की थोड़ी सी बात हो रही है यहाँ पर. चलिए, दोस्ती भी लाइफ में चाहिए, लेकिन अब दोस्ती का मतलब ये मत समझिए कि मुझे वही लोग दोस्त बनेंगे जिनको बहुत समय से मैं जानता हूं. दोस्ती का मतलब क्या होता है? अब मानस, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स. फ्रेंड का मतलब क्या होता है? क्योंकि मानस हैज गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, lot of friends. Rudresh ji, you are here, and if any other diamonds are here, you can unmute yourself. मानस जी बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड? अच्छा, आपको अनम्यूट. अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी. रुद्रेश जी, सॉरी फॉर दैट. यस. रुद्रेश जी, मानस जी, टेल मी, दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्ती का मतलब क्या होता है? सर सर, दोस्ती का मतलब मुझे बहुत अच्छे से मालूम पड़ा when I started Indus Viva last 4.5 years back, because when I approached for this plan and when I show this plan to them, 49 of my friends says me no. Okay, those are my very good friends, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, जिसके साथ मैं सब कुछ किया हो लाइफ में. They know everything about me, I know everything about them, but somewhere I believe कि वो लोग मेरा वो पार्ट नहीं जानता है जो एक्चुअली उनको जानना चाहिए. But after Indus Viva, today I have very good friends who are growing with me. मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, वो भी मेरे साथ ग्रो कर रहा है. In my good times they are with me, they have grown with me. In my bad times, okay, वो मेरे साथ है. एंड आई थिंक वो दोस्त होता है जो एक्चुअली एक मिशन में, एक विजन में रहते हैं और सपोर्ट करते हैं इन एनी टाइम, और बिलीव करते हैं 100% कि यस, ही इज माय फ्रेंड. इसके साथ अगर मैं पिकनिक जा सकता हूँ तो इसके साथ मैं सक्सेसफुल भी बन सकता हूँ. उसके बीच में वो कभी एक दरार नहीं लाता है. एंड दैट आई स्ट्रांगली बिलीव वही लोग मेरे दोस्त है. वो लोग भी मेरे दोस्त ही है. स्टिल आई हैव गुड कनेक्शन विद देम, बट दे आर नॉट इनटू माय बिजनेस. कुछ गैप उनके और मेरे बीच में है. लेकिन आई हैव सम फ्रेंड्स जिनको मैं लास्ट 2 साल, 1.5 साल या 3 साल से जानता हूँ. दे आर मोर कनेक्टेड विद मी. वो लोग, अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ, वो मेरे को कुछ भी बोलते हैं, वी लिसन टू ईच अदर. सो वो फीलिंग हम लोगों के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होता है. एंड आई थिंक फ्रेंडशिप एक बहुत बड़ा टर्म होता है जिसको एक मिनट में हम नहीं समझा पाएंगे. बट आई स्ट्रांगली बिलीव जो हर वक्त रहते हैं, एनी टाइम, एंड जब कोई मेरे बारे में कुछ उनको खराब भी बोलते हैं, देन आल्सो दे स्टैंड फॉर मी. आई थिंक दे आर माय रियल. ये सच्ची दोस्ती है, सच्ची दोस्ती है. यस, वही है. तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरे हार, सुन ले मेरे यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. राइट? सो रियल फ्रेंड्स आर दोज हु स्टैंड विथ यू इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स. डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि बचपन के दोस्त. सो रुद्रेश जी, आई आस्क्ड यू, सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू फ्रेंड? मतलब अगर आप मुझे चिकमंगलुरु लेकर जाते हैं, तो आपके मर्सिडीज में जा रहा हूं, तो सडनली आपने सिग्नल पे खड़ा किया और आपने अपने दोस्त को देखा, तो इमीडिएटली यू आर टेलिंग, सर ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय बचपन का, क्या बोलते हैं ना वो, राइट, वो चड्डी दोस्त. राइट? दैट्स अ वर्ड वी से, यू नो, बचपन का दोस्त. राइट? सो व्हाट, जिस किसको आप कहेंगे यू आर योर बेस्ट फ्रेंड, एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेलिंग द मीनिंग ऑफ फ्रेंड? सर, मैं बेस्ट फ्रेंड बोले तो, और व्हाटएवर चड्डी फ्रेंड जो भी हो, अगर मैं बोले तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो कुछ फीलिंग्स है वो हम एक्चुअली घर वालों से शेयर नहीं कर सकते हैं, और बाहर कोई भी किसी आदमी से हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनसे हम शेयर कर सकते हैं. शायद वो कॉन्फिडेंशियल हो या जो भी हो, उनसे हम शेयर कर सकते हैं. और उनसे शेयर करने के बाद वो क्या सोचता है ये पता नहीं है, लेकिन हमारा अंदर जो फीलिंग्स है वो और बहुत अच्छा होता है और हल्का होता है. हमारा जो बार है, बोझ है, वो कम होता है. सो उसको हम बोल सकते हैं चड्डी दोस्त, और उनको हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि चड्डी दोस्त हमारा जो बिजनेस में नहीं आएगा, और हमको ये दुख भी लगता है,
लेकिन मैं दोस्तों मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज सबके साथ कुछ एक्सपेक्टेशन मत करो। कुछ दोस्तों को भी आप सेपरेट रखो कि आपका फीलिंग, ताकि एक दिन अगर सक्सेस होने के बाद भी अगर आपका कुछ कहना है, आपका जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा भी लोग होना है। Yes. तो अगर मैं बोले तो इंडस्ट्री व सभी लोग नहीं करना है, एंड इट इज नॉट कप ऑफ ऑल एक्चुअली। सो सभी लोग नहीं करना है, और ऐसा भी लोग रहना है। अगर मैं बोले तो आप सभी लोग एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड है हमारा, जो सभी लोग वी अभी जो ये इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर है, वी एक्चुअली सभी लोग बेस्ट फ्रेंड है। बट इससे भी अलावा कुछ ऐसा दोस्त भी हम रखना है ताकि हमारा जो फीलिंग्स उनके साथ हम खुला शेयर कर सकें। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू रुद्रेश जी। तो दोस्तों द पॉइंट हियर इज, पांचवा पॉइंट जो यहाँ पर हमारे रॉबिन शर्मा कह रहे हैं इन द चैप्टर नंबर 34 इन दिस बुक इज दैट गुड फ्रेंडशिप्स आर प्राइसलेस ट्रेजर्स। अब ये मत सोचिए कि फ्रेंडशिप का मतलब बहुत लंबी होनी चाहिए, बहुत पुरानी होनी चाहिए। कभी कभी अपने विचारों के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक हमें कुछ लोग ऐसे अपने जिंदगी के इस सफर में ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिनके सोच हमारे सोच से मैच होता है। वो रियल फ्रेंडशिप बन सकता है, बहुत अच्छा एक बंधन बन सकता है आपके बीच में, राइट? हम सब लोग इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे के साथ दोस्ती है, राइट? बिकॉज वी ऑल हैव द सेम फीलिंग्स, सेम थॉट्स, we all want financial freedom, we all want to become entrepreneurs। हम सब लोग वेलनेस में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट दैट गुड फ्रेंडशिप्स, अच्छी दोस्ती अपनी लाइफ में एक ट्रेजर, प्राइसलेस ट्रेजर, राइट? बहुत ही प्राइसलेस, एक कीमती चीज हो सकता है अपनी लाइफ में। ट्रेजर का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? एक निधि, राइट? एंड दैट ओल्ड फ्रेंड्स आर द मोस्ट प्रीशियस वंस। अगर पुराने दोस्त आपके लाइफ में अगर आप मेंटेन, जैसे रुद्रेश जी ने कहा, कीप योर फ्रेंड्स सेपरेट, जिनके साथ कभी कभी आप जा सकते हैं, सक्सेसफुल होने के बाद भी जाकर मिल सकते हैं, कभी शादी में जा सकते हैं, उनके बर्थडे में विश कर सकते हैं। इट्स गुड, यू शुड हैव वन सर्कल which is actually not connected to your business, या कभी कभी उसमें जा सकते हैं। हाँ, एक बार अगर दोस्त ने बिजनेस रिजेक्ट किया तो दोस्त को नफरत मत करना, और लेकिन दोस्त के साथ ही वक्त मत बिताना, लेकिन थोड़ा सा उस दोस्त को हाय हेलो, हैप्पी होली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, दिवाली, ये सब विश करते रहना, बिकॉज यू आर बिजी विद समथिंग एल्स। वंस यू बिल्ड योरसेल्फ, अपने आप को बिल्ड करने के बाद यू कैन एक्चुअली गो बैक एंड continue your friendship। जैसे I have friends who are 20 years old, 25 years old, 30 years old, 35 years old, you know, my childhood friends. So I maintain them, but I don't have to bring everybody in the business। जैसे रुद्रेश जी ने कहा, हर किसी को बिजनेस में लाना, ऐसे जिद नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे लोगों को मेरे साथ बिजनेस में लाना, ये मैं चाहता हूं, लेकिन ये जिद नहीं कर रहा हूं कि मेरे दोस्त लोग ही वो अच्छे लोग होना चाहिए, राइट? ऐसे कभी नहीं होता है। अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला, अगर आपको बढ़िया शेफ चाहिए, आप जिद नहीं करेंगे, नहीं मेरे दोस्तों के बीच में से ही वो शेफ निकलेगा, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे ठीक है, लेट मी फाइंड द बेस्ट शेफ, ब्रिंग हिम इनटू द होटल, और उस शेफ के साथ मैं अपना दोस्ती बना लूंगा, अपना रिलेशनशिप बना लूंगा, एंड आई विल रन माई होटल। सेम वे यू आर रनिंग योर वेलनेस बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसके अंदर अगर आपके दोस्त फिट होंगे तो बल्ले बल्ले, अगर दोस्त फिट नहीं होंगे तो जो फिट होंगे वो आपके दोस्त होंगे, राइट? होना चाहिए, राइट? सो दैट्स अबाउट द फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, एंड इट्स ऑलरेडी 7:48। दोस्तों आई डोंट नो, यहां पर 40 चीजें इन्होंने दिया, एक एक चीज भी इतना, मतलब कभी आपने सोचा कि एक किताब पढ़ने के लिए इतना सब कुछ हमें सोचना पड़ता है? हम लोग ना कभी कभी लगता है हाँ मैंने एक किताब खरीद लिया, और ऐसे वो इंदिरन में रजनीकांत पढ़ता है ना, आपको पता है, उसके सामने बुक रखा तो ऐसे करता है, स्कैन करके बोलता है हाँ मैंने पढ़ लिया। तो हमारे लोग भी रजनीकांत के जैसे कभी कभी किताब को ऐसे घुमा फिरा कर हाँ आई हैव स्कैन्ड इट। दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू ईट, इट्स हाउ मच यू कैन डाइजेस्ट। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू कैन ईट, इट्स हाउ मच यू कैन डाइजेस्ट। हम कितना खाना खाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना हजम, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सेम वे आपको पूरा किताब नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, सिर्फ ये चैप्टर नंबर 34, और उसमें भी अगर 4-5 पॉइंट भी अगर अपना लिया ना, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर पक्का। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना, नॉलेज विदाउट यूटिलाइजिंग इज गार्बेज। तो आपके घर में 40-50 किताब लेकर आकर रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, लाइब्रेरी में जाकर फ्री में जो बुक मिलता है ना, 5 रुपए 10 रुपए में, उस किताब में भी आप पढ़ोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे।
So because lot of wisdom remains in the books, especially people like Robin Sharma. They are the real fantastic people who use powerful words. अच्छा, so one more point, last point आप सभी लोगों के लिए, let me 40 के अंदर मैं एक बेस्ट पॉइंट सेलेक्ट करके उसके साथ आज का सेशन में खत्म करूंगा. अगर बोरिंग है तो चैट में वो भी बताइए, अगर मजा आ रहा है तो चैट में वो भी बताइए. अच्छा, that people putting you down is a sign of your increasing success. Wow, this is a beautiful point. 7वां पॉइंट, 7th पॉइंट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं. 40 की उम्र तक या उससे पहले या उस उम्र में जो हमें 40 चीजें पता रहना चाहिए अपने लाइफ में, उसके बारे में रॉबिन शर्मा चैप्टर नंबर 34 इन द बुक कॉल्ड द एवरीडे हीरो मैनिफेस्ट, इसके अंदर हमें पॉइंट नंबर 7 पर ये बता रहे हैं दैट कि ये people putting you down, that people putting you down is a sign of your increasing success. क्या बात है. आई थिंक इसके साथ आज का वेबथॉन हम समाप्त करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. जैसे जब लोग हमें नीचे या अपनी टांग खींचना चाहते हैं और हम पर वो गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी हम हमें नफरत करते हैं, पीपल पुटिंग यू डाउन यानी या हमें दबाना चाहते हैं, हमें नेगेटिव चीजें बताना चाहते हैं और हम जो कर रहे हैं उससे जलते हैं, तो इसका असली मीनिंग ये होता है कि आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सफल हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कामयाब हो रहे हैं और आप कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं. तो ये उसका रियल मीनिंग है. दोस्तों, डेफिनेटली जब तक लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, किसी ने बहुत खूब कहा कि इसका अर्थ ये है कि वो आपके नीचे हैं. इफ पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर बिलो यू, क्योंकि जो आपके नीचे होते हैं वही तो आपकी टांग पकड़ के नीचे खींच सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो रहेंगे वो कभी आपको टांग आपके खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर है. अगर कोई आपका टांग खींचना चाहता है, इसका मतलब है कि वो आपके नीचे है. तो हमारे नीचे या हमसे छोटी सोच जिनकी है, वो हमेशा हमारे साथ इस प्रकार के संघर्ष में, इस प्रकार के क्या बोलूं मैं, इस प्रकार की बहस यानी आर्ग्यूमेंट या इस प्रकार की जो फाइट में हमारे साथ हमेशा रहते हैं. तो डोंट वरी, जब लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, अपोजिशन ज्यादा हो गया, इसका मतलब है इलेक्शन पक्का जीतेंगे आप. जिसका अपोजिशन ज्यादा है उसी को वोट ज्यादा मिलता है. अब देखिए, कोई मुझे आकर पूछता है कि सर आपके ऊपर लीगल प्रॉब्लम आया, क्यों मेरे ऊपर नहीं आया? मैंने कहा उन लोगों को पता है किसके ऊपर लीगल प्रॉब्लम डालने से ज्यादा इफेक्ट मतलब मार्केट में पड़ेगा, तो इसीलिए ज्यादा वो शायद मेरे ऊपर वो लीगल इश्यूज आया. तो अब पॉइंट यही है दोस्तों, जब आपको लोग अपोज करते हैं तो ये आप याद रखिए, स्पेशली आम जनता, आम लोग अपोजिशन नहीं चाहते हैं, वो सबके साथ गुड़ी गुड़ी रहना चाहते हैं. आपको एक सजेशन देता हूं मैं आज, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बहुत प्यार दे और भीड़ में आपके पास आए और आपको बहुत अप्रिशिएट करें, मीठी मीठी बातें आपसे कहें, तो उसका बेस्ट तरीका है आप आइसक्रीम बेचना शुरू करो, क्योंकि आइसक्रीम वालों को हम सब लोग पसंद करते हैं, जो हमारे घरों के पास आइसक्रीम बेचते हैं. राइट? इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बेइज्जती मतलब आइसक्रीम बेचने वालों का बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच ये है हमारे लाइफ में हम 100% सबको सेटिस्फाई करें ये मुमकिन नहीं है, हम सभी लोगों को खुश रखें ये भी मुमकिन नहीं है. 80%, 80-90% अगर ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, लोगों को आपने खुश किया. क्योंकि मैं एक आरटीपी में गया था, तो आरटीपी में हॉल के अंदर 150 मेंबर्स हैं, तो 150 के 150 को मैं खुश नहीं रख सकता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं. हाँ, अगर 150 में 120 लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, खुश हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वो मेरे लिए काफी है. बाकी 30% तो मतलब बाकी 30 लोग तो ऐसे ही रहेंगे. राइट? तो आपके लाइफ में भी यू कैनॉट सेटिस्फाई एवरीबडी. आप सभी लोगों का सर्टिफिकेशन के लिए वेट मत करो. अच्छा मिस्टर रुद्रेश, आप डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए लायक हैं, आप सक्सेसफुल बनने के लिए लायक हैं. हमारे परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से आपको आज हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं. अब आपको हम लोग इजाजत दे रहे हैं आप आगे जाने के लिए. ऐसे कभी नहीं होता है बाबा, आपको लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, लोग आपको रेड कारपेट डालकर आपको वेलकम नहीं करने वाले हैं, लोग आपको तारीफ नहीं करने वाले हैं, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, ठोकने की कोशिश करेंगे.
टांग खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कितना मजबूत रहना चाहिए, अपने मन की बल, अपने मन की स्थिति, मनोस्थिति जो है उसे एकदम जबरदस्त कैसे रखना चाहिए, ये हमारे हाथों में है। दोस्तों, इसी विचार के साथ आज का इस पढ़ो विद प्रेम का सेशन को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। यही उम्मीद है कि आपको आज बहुत मजा आया, आपने यहां से कुछ तो कुछ सीखा होगा। ये किताब आपके लिए जरूरी नहीं है, अगर ये चैप्टर जो है उसके अंदर हमने जो 4-5 चीजें यहां पर डिस्कस करी, तो ये अगर आपके लिए बहुत फायदामंद हुआ तो डेफिनेटली आई एम वेरी मच हैप्पी आपने आज पार्टिसिपेट किया। हाँ, इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ बिजनेस के ही लोग नहीं, आपके दोस्तों को भी आप इन्वाइट कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त लोग बुक्स ज्यादा पसंद करते हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। Hey, Arjun, please join me in this program. I have my good friend Mr. Prem from Bangalore, who is a successful entrepreneur. He reads one book every week. ऐसे बोलकर आप अपने बच्चों को भी इसमें बिठा सकते हैं, बिकॉज ये कार्यक्रम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, जिंदगी की बात, सक्सेस की बात और एक अच्छी खुशी की जिंदगी के बारे में यहां पर चर्चा किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आप सब लोग आपका फीलिंग जो है एक ही शब्द में आप यहां पर कहें, और उसके साथ हम लोग वी विल वाइंड अप टुडे सेशन। अनम्यूट कर रहा हूं आप सब लोगों को। यस, हियर वी गो। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. अच्छा लगा। Very much wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much, sir. बहुत ही Thank you so much. great session, sir. Great session, marvelous. Thank you so much, sir. Thank you. Real information. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। इन 7 to 7:45 इज माय टाइम, सो मार्क योर शेड्यूल एंड मेक श्योर नेक्स्ट वीक में फिर से हम मिलेंगे पढ़ो विद प्रेम, जिसके अंदर हो सकता है सेम बुक वी कैन रिपीट। इसका मतलब ये नहीं हमें ज्यादा बुक पढ़ना चाहिए, नहीं भाई, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा डेप्थ जाओ। विड्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट समटाइम्स इन नॉलेज, इट्स अबाउट डेप्थ। तो हो सकता है मे बी इसी बुक को हम लोग नेक्स्ट 13 वीक्स के लिए भी कंप्लीट मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, बट लेट मी सी इफ आई फील दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। और आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, जहां पर भी आप मेरे से कनेक्टेड हैं, आज का सेशन कैसा लगा, इसका एक छोटा सा ऑडियो या एक छोटा सा पोस्ट या वीडियो बनाकर आप डालेंगे तो मेरे लिए वो फीडबैक बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम बना सकते हैं अपने नेक्स्ट वीक का सेशन और भी जबरदस्त, और भी बेहतरीन और भी धमाकेदार एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए दोस्तों, दिस इज प्रेम कुमार, योर फ्रेंड एंड पार्टनर, आपका दोस्त और आपका हम सफर इस जर्नी के अंदर कॉल्ड जिंदगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. It was a fantastic session. We really loved and enjoyed it, every bit of it. Thank you, sir. Yes, thank you Arjun for being a fantastic host, and thank you everybody. तो we all will wind up with जय हिंद। हम लोग जय हिंद कहेंगे और आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोग जय हिंद करके एग्जिट हो सकते हैं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, सर।